नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 और नंबर्स है यहाँ पे 2, 1, 1। हमें प्रूव करना है वेदर दीज आर वेरीफाई करना है वेदर दीज आर numbers, these are zeros of the polynomial or not. So let us take this equation p of x equal to okay और वेरीफाई करना है जीरोज है कि नहीं है, मतलब क्या करना पड़ेगा हमें p ऑफ जीरोज करना पड़ेगा, मतलब p ऑफ 2। जैसे कि हम 2 के लिए अगर हम वेरीफाई करेंगे सो p ऑफ 2, सो 2 वैल्यूज पूरे इक्वेशन में प्लेस करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। इफ इट इज 0 दैट मीन्स this number is 0 of the polynomial. So let us check for first number, that is p of 2. p of 2 equal to जहां जहां पे x है वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को रखना पड़ेगा। So 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, सो दैट इज 2 स्क्वायर, प्लस 5 इंटू एक्स दैट इज 2 माइनस 2। सो 2 का क्यूब 2 2 जा 4, 2 जा 8 minus 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, okay, plus 10, 5 2 जा minus 2. So 8 plus 10 18, minus 16 minus 2 minus 18, plus 18 minus 18, so that will be equal to 0. That means p of 2, okay, that is having the value 2 as a 0. So 0 इस equation के लिए 2 is the 0. Next 1. सो p ऑफ 1 इक्वल टू जहां पे 2 रखा है हमने वहां पे हम क्या रखेंगे 1। सो 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 इंटू माइनस 4, सो दैट विल बी माइनस 4। नाउ 5 इंटू 1, सो दैट इज प्लस 5 एंड दिस इज माइनस 2, सो इट विल बी इक्वल टू 1 plus 5 plus 6 minus 4 minus 2 minus 6, 6 minus 6, that will be equal to 0. So this is also the 0 of the given polynomial p of 1. Next p of 1 same, okay, that we have already verified. So it will be equal to 0 अगर हम यहाँ पे रखते हैं, so next p of 1 will be also equal to 0. Therefore 2, 1 and 1 are zeros of p of x. क्या किया हमने यहाँ पे सिंपल जीरोस की वैल्यू एक्सप्रेशन में रख दी, जहां जहां पे x है वहां पे हमने 0 पुटअप किया और कंडीशन क्या है, अगर वो जीरोस है या नहीं है फाइंड आउट करने के लिए p ऑफ दैट नंबर, p ऑफ दैट 0 दैट शुड बी इक्वल टू 0. नेक्स्ट पार्ट, also verify the relationship between the zeros and the coefficient. Now this is the p of x. Let us compare this p of x with the equation ax square plus bx plus c plus d, okay, equal to 0. So that is p of x. So p of x को हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, तो हमें a, b, c एंड d की वैल्यूज मिलेगी. सो a क्या है यहाँ पे, a इक्वल टू 1, b equal to minus 4, c that is coefficient of x, so that is 5, so c equal to 5, and d that is constant sum, so that is minus 2. क्या किया हमने, इक्वेशन जो है p of x उसको x स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस d के साथ कंपेयर किया इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को, so that we can get the values of a, b, c and d. Now suppose alpha, beta and gamma, these are the zeros, okay, so let zeros are alpha that is equal to 2, beta that is equal to 1 and gamma that is equal to also 1. So these are the three zeros of this cubic polynomial alpha, beta and gamma. क्या प्रूव करना है हमें, रिलेशनशिप प्रूव करनी है. सो फर्स्ट सम ऑफ जीरोज equal to alpha plus beta plus gamma, that is given as minus b by a.
माइनस बी बाय ए मतलब कोइफिशिएंट ऑफ माइनस बी। सो माइनस बी कितना हुआ यहाँ पे, दैट इज एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट। सो सी कोइफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, कोइफिशिएंट ऑफ x square upon coefficient of x cube with minus sign. So that is also can be written as minus b by a. Okay. So alpha plus beta plus gamma add कर लेते हैं. So that is equal to 2 plus 1 plus 1. So it will be equal to 3 plus 4. Now let us check minus b by a क्या आता है. Minus b की वैल्यू कितनी है, minus 4. So minus into minus it will be 4. Divided by a कितना है 1. So 1, so here you will get 4. That means by directly adding these roots alpha plus beta plus gamma हमें मिल रहा है 4 और by formula also we are getting the same value that as 4. So this is the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial. Okay, before this we have seen the relationship for sum of roots. अभी हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज गिवन एज अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा दैट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट शुड बी इक्वल टू d upon a with minus sign. d that is nothing but a constant term, so it will be minus constant term divided by a that is nothing but the coefficient of x cube. ओके, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा 3 रूट्स है जिनकी वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है. सिंपली हमें पुटअप करना है अल्फा दैट इज 2 इंटू गैमा 1 इंटू बीटा 1, सो दैट इज इक्वल टू 2. नाउ माइनस डी बाय ए, माइनस डी क्या हुआ यहाँ पे, डी की वैल्यू कितनी है माइनस 2. सो माइनस ऑफ माइनस 2, सो इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और a की वैल्यू कितनी है 1, so it will be 1, so it will be equal to 2. So 2 equal to 2. Okay, both sides are same. That means this is the relationship existing between the product of roots and coefficients of the variables. So how it will be defined? Alpha into beta into gamma that should be equal to minus d by a, that is nothing but the minus of constant term divided by coefficient of x cube. एक और रिलेशनशिप होती है between the zeros of the polynomial and roots of the polynomial. Okay, that will be for cubic polynomial only, not for the quadratic polynomial. What is that? That is alpha beta, दो रूट का मल्टीप्लीकेशन प्लस एनी टू रूट का मल्टीप्लीकेशन होता है यहाँ पे 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस अल्फा इंटू गैमा दैट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, फार्मूला क्या है यहाँ पे, दैट शुड बी इक्वल टू सी बाय ए. सी इज व्हाट, सी इज व्हाट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. सो दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x. c is coefficient of x divided by a that is coefficient of x cube. ओके, सिंपली वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे. अल्फा कितना था 2, सो 2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू गैमा दैट मीन्स 1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू गैमा, अल्फा कितना है 2 इंटू गैमा इज 1, सो दैट विल बी इक्वल टू, सो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, सो इट विल बी इक्वल टू 5. नाउ लेट अस चेक यहाँ पे c क्या है, c दैट इज नथिंग बट 5 बाय a की वैल्यू है 1, सो c बाय 1. ओके, सो c बाय a दैट इज नथिंग बट 5 बाय 1, सो दैट इज इक्वल टू 5. सो दिस रिलेशनशिप इज also verified for the roots which are multiplied and then get added.